all the classes that you are attending, I'm going to forward you the link after that. So you have an option to watch these videos within 48 hours. Reason is our cloud is full of these classes. So we cannot continue those classes for more than 48 hours. So within 48 hours, you can watch them, and after that, we are going to delete them. Fine? Okay. So I'm doing a quick revision as we have already done percentage class. People who joined today, people who just logged in, for them, I'm starting with the first question. Can anyone tell me what is the product of 49 into 41? This is the first question. The second question is 327 with 410. The third one is 979 square. So answer these three questions together. Good, Archik, Shashwat, Diksha. विदुषी, मैंने कहा जो क्लासेस आपके पास हैं वो जो जैसे आज ये मेरी क्लास है, तो इस क्लास को मैं जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल शेयर इट विद यू. आप देखिए 48 आवर्स तक यू कैन वॉच इट अगेन एन नंबर ऑफ टाइम्स. After that, I will delete it. After 48 hours, this class will not be available online. Okay, Raghavi also, Hardeep Kaur got the answer. Good to see you, Hardeep. I think this is the first time you are attending the class. Yesterday you were not there. Diksha Yadav, very nice. Raghavi Sharma has got 2 answers. Good, Sakshi, you are the first one who has given 3 answers. Shalini is saying, how can I watch it? I will forward it in this WhatsApp link. Click on that and start watching. कोई password नहीं चाहिए. Nitya, Kajal, Diksha, Nitya has given 2 answers. Devashi, Antas has given only 1 answer. Why Antas so slow? Rakshit, only 2 answer. Devashi 1, Urvi 2, Siddhi 2, Bhanu 1, only 1 answer. Anchal, you have given all the 3 answer. Very nice. Devashi has given 1 answer. Altya, very nice. Archik, एक और आंसर आ गया. Parth Agarwal, all 3. Very nice, Parth. Anchal, very nice. Anchal, all 3. Aditya Gupta got first answer. Kajal Tyagi, very nice. Devdutt, 2 answer. Antas, अभी देखा मैंने, कोई बात नहीं मेरे लाल, दोबारा देख. शाश्वत, very nice. Urvi Mittal got 1 answer. शाश्वत का भी एक ही आंसर आया है, पहले भी दिया था शायद शाश्वत ने. गौरी त्यागी got all 3 answers. Raghavi, very nice. Arya got all 3 answers. Very good, Arya. Anvesha got 1 answer. Manvi got 3 answers. Hardeep Kaur finally given second, I think third answer. Mitaksha has given 2 answers. One already given earlier, I think. Deepti Indrawal has given 3 answers. Devdutt, very nice. Shuryans, Hardeep Kaur, Bhanu, very nice. Good. Shashwat, second one का आंसर दिया है. Suryan Shishodia has given 1 answer. Rakshit has given 1 more answer. Yeah, Hardeep Kaur, I got your answer. Aditya Kumar is asking how to solve third one. I'm going to discuss it. Antas Deep has given rest of the 2 answers as well. Kinshuka has given only 2 answers. Diksha has given the last answer. Anshuman has also given 3 answers. Vidushi, very nice. All 3. Kirti, Bansal, all 3. Archik, good. I think this is the last one. Very nice. Bhanu, your last one is also here. Okay. Simran, why late? You joined late, I think. Only first answer so far. 979, 180. Vidushi, good. You changed that. Okay. So fine. I'm going to start now with the answers. The people who
got their answer because there were so many answers. So quick, I'm repeating it whenever the unit is, whenever the sum of the unit digit is 10 and 10th digit is coming out to be same, I'll multiply unit digit with unit. 9 ones are 9, but never write it in one digit form. You have to write in two digit form. The 10th digit 4 will multiply with the next number. After 4 it is 5. 4 5s are 20. Your answer is 2009. The next multiplication is the duplex method that we have discussed earlier. जिन लोगों ने क्लासेस नहीं अटेंड की होगी बता दीजिएगा मुझे, ये तो मैंने यूट्यूब में भी क्लास डाली हुई है. जस्ट सर्च जय सजवान, request you follow the YouTube channel, you'll find everyone's video there. So this is 0 is 0, cross multiply, this is 0 plus 7 is 7, 3 into 0 is 0, 7 4s are 20, 8 plus 2 is 30, 30 ka 0, 3 will be carry 3 4 12 plus 1 is 13. I'm sure that most of you have got the answer 134070. Fine. Let's move to the next one. Kajal Tyagi, please close your camera. Okay. So Bhanu has, Archik has given some more answers. Let's move to the next one. In this case, I'll use the base method. From 1000, the number is 21. You need to now check that which one will be feasible method. So in this case, I'll say it is 21 less 21 square hota 441. Separated by 21, you'll get 958. Your answer is 958441. I hope it is clear. So what you can, I want to find out 431 square. Find out it by using duplex method. Don't use the base method. Okay, Shashwat, my voice is breaking. Now, this is for testing. Please tell me how is my voice. Can you hear me properly now? Am I audible? Hello. Sir, your voice is breaking and in between it is not audible. Okay. Okay, now it is clear. Okay, let me check. Okay, okay, now tell me, can you hear me? I have closed all other network devices. Okay. Okay. So I'm starting now. I'm also getting answer. Archik has given answer. Nitya, Manvi, and sorry, before that also many of the people have given answer. Mitakshra has given the answer.
So here is the solution of this question. Jyoti just gave the answer. I think now almost everyone has logged in. One request to all of you, please listen this very carefully. Today is the last day when we are allowing you to register on Zoom network on the basis of your name only. Now onwards, like Jyoti have mentioned it, Vidushi has done it, you have to write down your name, put a dash, and then your enrollment ID. Without enrollment ID, if you don't, okay, Parth is saying my voice is not clear. Okay, Parth, uh, let me check it. Actually, the problem is with the connectivity, there's a lot of pressure over the internet. So maybe that is the reason. Okay, it will get fine. Because even the Airtel guys are not able to come today. I hope it will improve. Uh, you want me to write? So what you do is from next class onwards, write your name dash enrollment ID. You have to do this. That is the only way we would know whether you are our students or not. The people who have not got it, they need to call, not now, they need to call Jyoti by evening after 4 o'clock. You can call Jyoti at 8595343366. At this number, you need to call and confirm your enrollment ID. I would recommend you to WhatsApp her rather than calling her. So WhatsApp and ask about the enrollment ID. I'm sure it is going to help you. So rather than calling, I would not recommend you to call. I would say, please WhatsApp her. Yeah, Ayush, I know, my dear, I have tried, but just a second. Let me one request one more time. I would like to know if you can hear me clearly. Say yes, else say no. Arctic path. Okay, most of you can hear me. Okay, Vidushi, there may be a problem in your network then, because everyone is saying yes, you are audible now. Yes, sir, we can hear you. So it may be possible that your network is having some issues. So let's come to the question now. Uh, the people who are worried about that, what is the link, how can we watch it, for them I would like to say that all of these will be given on WhatsApp. आपको कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे Zoom ऐप पे चलते हैं. आपने उस पे क्लिक करना है, it will automatically start playing. कुछ नहीं करना, कोई पासवर्ड, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. नहीं Vidushi, you wait, maybe your network will get fine. Continue with it, don't stop watching it. So maybe the situation will improve. Or what you can do is you log in again. Vidushi, I will recommend you that if it is possible. Okay, so fine, let's start with the last question, 431. 1 square is 1, that is what we were doing in earlier class. 3 ones are 3, double of that is 6. 4 ones are 4, double of that is 8, plus 3 square is 9. 8 plus 9 is 17 ka 7. Carry 1. 4 threes are 12, double of that is 24, plus 1 is 25. 5, 2 carry. 4 square is 16, plus 2 is 18. Your answer is 185761. 185761. Yes. Many of you, Urvi has given the right answer. Manvi, Nitya, Archik, Mitakshra, Nitya. Mitakshra का थोड़ा आंसर गलत था. Aditi has given the same answer. Simran, your answer was correct. Ishi is saying, please explain it again. Ishi ji, हमने 100 tens और unit digit बताया था. I don't know whether you were present or not.
कल भी हमने इसका रिवीजन किया था। पहला स्टेप होता है यूनिट डिजिट का स्क्वायर, स्टेप 1। स्टेप 2 में आप टेंस और यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, यू डबल इट, एनी कैरी दैट विल बी एडेड टू दिस। स्टेप 3, 100 and unit multiply with each other, you double it, and the squaring, that is tens digit, will be added to this, any carry will be added to this. Step 4, unit 3 बार आ चुका है, उड़ा दीजिए इसे, 100 और tens बचा, आप डबल कीजिए, जो कैरी आता है वो कैरी जुड़ेगा। Step 5, you'll square 100 digit number, any carry that will be added to this. I'm sure you must have attended this thing. So number was 431. Please सुनिए, आपके कान बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। 1 square is 1, 3 ones are 3, double of that is 6. Step 3, 4 ones are 4, double of that is 8. बीच में 3 फंस गया है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 plus 8 is 17 का 7, कैरी 1। यूनिट 3 बार आ गया, उड़ा दीजिए, 3 डिजिट जैसे नीचे नजर आए 1 डिजिट उड़ा दीजिए, ठीक है? यस, तो 4 ones are 4, double of that is 8, plus 9 is 17 का 7, कैरी 1। 4 3s are 12, अगला स्टेप है 4 3s are 12, डबल ऑफ दैट इज 24, प्लस 1 कैरी था 25, इसको भी उड़ा दीजिए। अब 2 कैरी हो गया, 2 स्क्वायर इज सॉरी 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 is 18, आंसर आ गया 185761। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now the next topic that we did yesterday was percentage. In percentage, I talked about there were 3 concepts only I have discussed yesterday. The first one is, if A is more than B, B is less than A. If A is less than B, B is more than A. That's it. This is what I have discussed. Take an example. For example, there's Ishi and Shashwat. Ishi has got some toys. She got 300 toys, while Shashwat got 250 toys. Ishi told Shashwat that she has got 50 more than Shashwat. Comparison is with respect to Shashwat. That is the reason why I'm taking Shashwat in the denominator. While Shashwat told Ishi that he has got 50 toys less than Ishi. In this case, the comparison is with respect to Ishi. That is the reason why it is 1/5. This comes out to be 1/6. So if Ishi got 1/5 more than Shashwat, Shashwat must be getting less than Ishi. न्यूमरेटर कभी नहीं बदलता, वो सेम होता है। जब न्यूमरेटर सेम होता है और आपको वैल्यू घटाना है तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। तो आई वुड से शाश्वत विल गेट 1/6 लेस देन इशी। फाइन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हरदीप कौर, देयर मे बी सम नेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। इफ शाश्वत हैज स्कोर्ड 1/6 लेस, इशी विल गेट मोर। न्यूमरेटर नेवर चेंजेस। जब भी कोई चीज बढ़ता है उसका डिनोमिनेटर कम होता है, क्योंकि आपके लिए दुनिया में ये 2 ही नंबर आपको नजर आ रहे हैं और आपको चीजों को बढ़ाना है तो आपका इसका डिनोमिनेटर कम करेंगे। 6 में से 1 गया 5, तो इशी मस्ट गेट 1/5 मोर ट्वाइस देन शाश्वत। आई होप दिस इज क्लियर। This is what we discussed. That was the first concept. The second concept was whenever something increases by x% and then it increases by y%, I gave you formula. It increases by x plus y plus x into y by 100. This is a successive percentage change. अगर कहीं इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगा, हरदीप कौर, कैन यू हियर मी क्लियरली नाउ? If it is x% increment and y% decrease, I'll say this will be x minus y plus x into minus y by 100. This is what we have discussed. Whenever it is decreasing, you will attach a minus sign before it. एक चीज और है जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये थोड़ा बहुत ब्रेक आए तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नेट में ये प्रॉब्लम रहेगा। If you find that something is decreasing by a% and then it decreases by b%, the effective decrease is minus a minus b plus minus a into minus b upon 100. Your answer will come out to be minus a minus b. आप खुद बताइए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो प्लस ए बी अपॉन 100 कर सकते हैं। ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था। मैं आपको एक चीज और इसमें बताना चाहता हूं जो मैंने कल डिस्कस नहीं किया था। ये तो हुआ परसेंटेज की कहानी, लेकिन अगर कोई जो 2 वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है अगर वो फ्रैक्शन में है
तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस क्यू प्लस पी क्यू अपॉन 1, आप डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कहेंगे डिनोमिनेटर 1 इसलिए बिकॉज दीज आर फ्रैक्शंस, दीज आर नॉट परसेंटेज। तो फ्रैक्शन का जब कंपैरिजन होता है तो डिनोमिनेटर 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बताइए मुझे, अगर कोई चीज 20% पहले इंक्रीज हो रही है और फिर वो से 25% इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव इंक्रीमेंट? फटाफट बताइए, व्हाट इज द इफेक्टिव इंक्रीमेंट कमिंग? Archit, fast 50. Shashwat 50. Devashi is also saying 50. Very nice. Sakshi, Raghavi. Then you have Suryansh, Devdutt, Shaleen, Urvi, Diksha, Kinshuka, Ishi, Rakshit, Aditi Gupta, Nitya, Gauri Tyagi, Siddhi, Aditya Kumar. Very nice. 50% लोगों के भी आंसर नहीं आया अभी तक। विदुषी, वेरी नाइस। आई होप यू कैन हियर मी नाउ विदुषी क्लियरली। मिताक्षरा, वेरी नाइस, 50. Aanchal is also saying 50. Everyone is getting correct. That's good. Jyoti is also getting 50 now. Aanchal Paranwal, 50. What about others? I don't think everyone has given the answer. Okay. Parth has got 50. Banu, what you are thinking is correct. Deepthi also got 50. Okay, fine. So let me explain this question by one more way. I'm talking about something increases by 20% and then increases by 25%. What is the effective change? All of you have got the answer, and that is also correct. Can I write 20% as 1/5 and 25% as 1/4? Fine. So I'll say plus 1/5 into 1/4. So LCM of the denominator comes out to be 20. This is 4, this is 5, this is 1. That comes out to be 10 by 20. It is 1/2, which is 50%. So the overall growth is coming out to be 50%. I'm finding it in fraction, which is coming out to be 1/2. I hope it is clear to all of you. You can use the fraction to get the answer. Fine. Let's move to the next one. तो ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मान लो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज कांस्टेंट, 10,000 is what I am spending every day on food items, every month on food items. If prices increase, the quantity will decrease. If prices increases by say 30%, 30% को आप पहले फ्रैक्शन में लिखोगे, 3/10 से प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम होगा जी। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कभी नहीं बदलता, न्यूमरेटर सेम रहता है। कोई चीज घटेगा तो उसका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो I'll say the quantity drops by 3/13. That is what you need to do. Fine. This is what also we discussed. So we are moving ahead now. ये सब कुछ आपको समझ में आया? ठीक है। कुछ मुझसे कल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट ने, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप देख सके कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन इज, उर्वी और वंश, after some years they got a placement from the college and they meet me. So Urvi told Vansh, Urvi told me that she has got 2 lakh rupees extra package than Vansh, while Vansh has got 40% salary less than Urvi. I hope question is clear. Urvi and Vansh, both of them, after some years, after completing their education, they appeared for the placement in their college.
So I asked both of them how they are doing. Urvi, rather than directly answering me the question, told me that she has got 2 lakh rupees more salary than Vansh. While Vansh said he has got 40% less than Urvi. So can you find out what are their salaries? Archik is the first one to answer. Very nice, Archik. Followed by Vidushi. Ragvi, very nice. Vansh has given his salary more. Vansh, please check your answer. Rakshit, Anvesha, Ragvi has given the correct answer. Parth, very nice. Anvesha, good. तो कल की क्लास काफी अच्छी रही फिर तो. ज्योति, वेरी नाइस. सिद्धि, साक्षी, दीप्ति. दीप्ति अपना आंसर चेक करो. शाश्वत, प्लीज चेक योर आंसर. किंशुका, प्लीज चेक योर आंसर. वंश, प्लीज चेक योर आंसर. सूर्यांश, नहीं सूर्यांश आपका आंसर ठीक नहीं लग रहा मुझे. उर्वी, प्लीज चेक. 2,80,000 कैसे होगा उर्वी? दीक्षा जी, ये तो बड़ा खतरनाक नंबर लिखा है मैडम आपने. देवदत्त, I think you are correct. Kinshuka is correct. Sir, mine Mitakshara. Sorry, couldn't get it. Sorry, I may have missed it. Please send that again. Aditi, your answer is correct. Simran, your answer is correct. I think you have given Urvi's salary. Mitakshara, yes, you are correct, Mitakshara. Shaleen, ये 3 किसका है भाई ये? Mitakshara, yes, yes. Both of your answers are correct, ma'am. Urvi, very nice. No, Urvi, you need to cross check your answer. गलत है मैम. How could Vansh is getting more salary, Hardeep? When I'm saying Vansh is getting 40% less than Urvi, आप क्यों? ठीक है, वंश आपका फ्रेंड है, इसका मतलब जबरदस्ती उसे ज्यादा सैलरी थोड़ी ना दिलाएंगे आप. Okay, here it is. Vansh is getting 40%. That is 2/5 less than Urvi. ध्यान से मेरे वर्ड सुनिए. 2/5 उर्वी से कम कमाता है वंश, जो 2 लाख के बराबर है. 2 से 2 कैंसिल हो गया. उर्वी मैम 5 लाख रुपए कमाती हैं, और क्योंकि उर्वी 2 लाख ज्यादा कमाती है तो वंश 2 लाख कम कमाएगा, तो वंश की सैलरी 3 लाख होगी. उर्वी आपके क्या 5 लाख 7 लाख क्यों करा? 5 लाख 7 लाख. वंश आपसे ज्यादा नहीं कमा रहा मैम, कम कमा रहा है, 40% लेस. सो आई एम श्योर वी हैव डिस्कस इट यस्टरडे एज वेल. ठीक है, तो मुझे लगता है ये आंसर आना चाहिए था. सूर्यांश, योर आंसर इज करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नाउ. हरदीप, आई ओके गुड, यू गॉट इट. The topic today we are going to take is simple interest and compound interest. हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज और इसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज. Simple interest is a simple interest that you earn. This is simple interest is the interest that you earn over principal amount. This is the interest that you earn over the principal amount. So for example, the rate of interest is 20% and the principal value is given as a 10 lakh. $10 lakh is the money which is there. So 20% of 10. तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला होता है P into R into T upon 100.
तो हम क्या करेंगे, वैसे भी अगर देखो हर नंबर अपना 100% होता है, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज 10 लाख. So 10% of this will come out to be 1 lakh and 20% of this will come out to be 2 lakhs. So I'll say that every year you are going to get 2 lakh rupees as the interest. That is simple interest. If I ask you what will be the simple interest for next year, second year, you will get 2 lakh more and your interest will come out to be 4 lakh. If someone asks you what is the simple interest for 3 years, every year you get interest over the principal amount only. ध्यान से सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे. सो एवरी ईयर यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट ओवर योर प्रिंसिपल अमाउंट ओनली. So if someone asks what is the principal amount for 1 year, it is 2 lakh. For 2 year, it is 2 plus 2, 4. For 3 year, it is 2 plus 2 plus 2. Okay, that is simple interest. While the compound interest is the interest that you earn over the principal amount. Along with that, you also earn interest over interest. For example, the same amount is there. The amount is 10 lakh rupees. The rate of interest is 20%. The compound interest for first year is equal to the simple interest for first year because no interest has been earned so far. तो जो भी आपको ब्याज मिलने वाला है उस पे 20% आपको मिलेगा साहब, जो कि 2 लाख रुपए होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 लाख है, दूसरे साल का भी 2 लाख है, प्लस 2 लाख पे आपको 20% और मिलेगा, मतलब 40,000 रुपए और मिलेगा. तो 4.40 lakhs इज व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न इन 2 इयर्स. कोई बोलेगा 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? देखो जी, प्रिंसिपल अमाउंट पे मुझे 2 लाख रुपए मिलेगा, प्लस 2 साल में अभी 4,40,000 का इंटरेस्ट आया है, प्लस आई विल ऑल्सो अर्न 20% ओवर इट, मतलब 88,000 और इस पे आएगा. तो दैट विल कम आउट टू बी 8 plus 4 is 12, 7.28 lakh will be the interest that you will be earning. अगर आप 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखिए तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट में 6 लाख था, जबकि यहां बढ़ के ये 7.28 लाख हो गया है. Why? The difference is only because of you are not only earning interest over the principal amount, you are also earning interest over the interest as well. So the total compound interest for 3 years comes out to be 7.28. I hope it is clear. Now, people say, sir, why should not I remember the formula for the compound interest, which is P into 1 plus R by 100 to the power of n. That gives you the amount. Please don't use this formula. You will not be requiring it in case of compound interest because it is going to take a lot of time if you are going to use this formula. So I am going to give you some tricks which is certainly going to help you. See here. A principal of 10,000 rupees is what I am putting in the bank. The bank tells me that they will provide me 10% interest. I am forming what is the simple interest and compound interest I am going to get every year. So for first year, the simple interest and compound interest is coming out to be same, which is 1,000 rupees in both the cases, because no interest has been earned so far. You will get the same compound interest as the simple interest. In second year, I'll get 1,000 rupees over the principal amount. I will again get 1,000 rupees over the principal amount. लेकिन 2 साल के बाद अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट देखा जाए, I am talking about at the end of 2 years, what is the interest that you will get? I'll get 2,000 rupees, how 1,000 rupees for each year. Here I'm getting 1,000 rupees over the principal amount, but along with that, I'll also earn 10% over it, which is 100 rupees more. So that gives me, because if I include the last year interest as well, that gives me 2,100 rupees. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके लेवल के हैं, कैट के बारे में बात नहीं करता क्योंकि कैट में इससे काफी ऊपर लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन सी सैट हो गया, लॉ हो गया, आईपीएम हो गया, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो गए, उन सारे ही एग्जाम में आपको सेकेंड ईयर के बाद पूछने के चांसेस काफी कम हैं. लेकिन फिर भी आपको एक जनरल फॉर्मूला आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. यू शुड बी नोइंग, स्पेशली जो लोग आईपीएम के एग्जाम में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है.
how do you find out the difference between compound interest and simple interest for 2 years? The difference between them, look at this. This is 2000. This one is also 2000. The difference between them is interest over the interest of first year. जो पहले साल का ब्याज आपको मिला है, उस ब्याज पे, उस इंटरेस्ट पे आपको दोबारा जब इंटरेस्ट मिलता है, वही एक्स्ट्रा पोर्शन आता है इनके डिफरेंस में. इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए. दूसरी बात जो आपको सुननी है, ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं. मैं बैंक में गया, मैंने 10,000 रुपए बैंक में डाले. एक साल बाद मैं जाता हूं, मुझे मेरे दो बैंक में 10,000 रुपए डाले मैंने. एक मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है, दूसरा मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देता है. इफ आई गो आफ्टर 1 year, both of them are going to return 11,000 rupees to me because 1,000 was my interest and 10,000 was my principal amount. यही काम अगर मैं 2 साल बाद जाके करता हूं, मैं पहले साल के बाद नहीं किया, मैं डायरेक्टली 2 साल के बाद जाता हूं, तो जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट देता है, this man will give me 12,000 rupees. 10,000 is my principal amount and 2,000 is the interest which is accumulated in the 2 years. While the second bank which is giving me interest as a compounded annually, चक्रवर्ती ब्याज जो लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है, वो एनुअल बेसिस पे लगता है, तो वो मुझे 12,100 रुपीज देगा. 100 रुपीज फालतू इसलिए देगा, अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं पूछने जा रहा हूं. एक साल के बाद, आफ्टर 1 year, द मनी बिकम्स 11,000. अगर मैं एक साल बाद जाता, मैंने पहले बताया था, तो मुझे 11,000 रुपए बैंक देके कहता चले जाइए साहब. लेकिन मैंने वो पैसा अगर नहीं लिया होता, तो अगले साल मुझे जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वो 10,000 पे नहीं मिलेगा. इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बी पेड ओवर द अमाउंट विच इज 11,000. तो 11,000 का अगर मुझे कोई 10% देगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 1,100. I hope it is clear. ठीक है? So here is the question for you. What I do is I go to the HDFC Bank, which gives me simple interest. I go to SBI, which gives me compound interest. The rate of interest for both of them are same. ठीक है? Okay, don't take this as well. The first gives me simple interest, second gives me compound interest. Both of them say after 5 years, your money will double. इंटरेस्ट रेट नहीं मालूम मुझे, बस मुझे मालूम है दोनों बैंक कहते हैं मेरे पैसे 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे. तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका ज्यादा होगा? एचडीएफसी के लिए H लिखिए, एसबीआई के लिए S लिखिए. Which will be giving you more rate of interest? Shaleen H, Aditya Nidhi S, HDFC. Okay. Siddhi Singh S. Shashwat is also saying S. Devdutt H, Aanchal S, Gauri S. आप मुझे अपना अकाउंट तो नहीं बता रहे, आपका अकाउंट कहाँ है? पार्थ H और SBI दोनों लिख लिया, बहुत बढ़िया. मानवी, दीप्ति, all of you are saying H. Kajal is saying HDFC. Nitya is saying S, SBI. Parth is saying SBI. Now Parth finally changed his answer. Okay. Mitakshara is saying HDFC. Hardeep SBI. Aditi Gupta HDFC. Harsh HDFC. Bhanu HDFC. Okay, Aditya is saying HDFC will give more interest. Vidushi is saying HDFC. Kinshuka is saying HDFC. Okay. Arya is saying HDFC. Okay. Now listen to this. आप बताओ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस पे इंटरेस्ट मिलता है. हम मान लेते हैं दोनों का इंटरेस्ट बराबर है. इसी योर आंसर मस्ट हैव रीच्ड मी, बट इतना फास्ट आया कि शायद वो निकल गया होगा, तो आप दोबारा आंसर दे सकती हैं. अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा प्लीज. आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली.
अगर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है, सही है ऋषि, आपका 5 साल में पैसा डबल होता है, इसका मतलब 5 इयर्स में यू हैव गॉट 100% इंटरेस्ट। 5 ईयर में अगर आपको 100% इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि द मनी गेट्स डबल, जितना पैसा आपने प्रिंसिपल लगाया उतना ही पैसे का आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो 5 ईयर में यू आर गोइंग टू गेट 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो हर साल आपको कितना मिला होगा? आपको मिला होगा 100/5, which is coming out to be, so SDFC gives you 100% interest in 5 years. So because it is a simple interest, the rate of interest is same for every year, it is coming out to be 20%. अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को भी 20% मान लेता हूं, मान लेते हैं कि दोनों बराबर है। यार सर आप तो बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मैं 20% का इंटरेस्ट मानूं, तो आपको नहीं लगता अगर ये 20% का होगा तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आपको 2000 रुपीज मिला होगा, अगले साल में वो ज्यादा होगा, वो 2000 नहीं होगा, वो ज्यादा होगा, वो 2400 होगा। एंड इट इज सर्टेनली गोइंग टू एंड अप 5 साल बाद ये आपको कहीं ज्यादा पैसा देगा, इट विल बी मोर देन 100%। लेकिन मुझे 100% ही चाहिए, इसलिए मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 20% ही होगा। वो 20% से क्या होगा भाई लोगों? कम होगा। तो अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट 20% है तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेनली इससे कम होगा। कम कितना होगा? इट विल बी लेस देन 20%। दैट इज व्हाट आई नो। आई होप इट इज क्लियर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्विकली पूछ लीजिए मुझसे। नहीं? ओके, अंतस इज सेइंग प्लीज रिपीट इट। अंतस, मैं कहता हूं कि 5 साल में मुझे जितना पैसा मैंने लगाया उसका डबल मिलता है। यार मैंने अगर 100 रुपए लगाए, 5 साल बाद मुझे 200 रुपए मिलता है, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए जो है, 100 रुपए जो है वो मैंने 5 साल में कमाया है। मतलब 100% मैंने 5 साल में कमाया, तो हर साल मैंने 20 रुपए कमाया होगा, 20% इंटरेस्ट कमाया होगा। आते हैं किंशुका, आई विल आंसर दोस थिंग। सो जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं सेम 20% से लेके चलूं, तो मैं कहूंगा 20% एक्यूमुलेट कर करके 5 साल में भाई 100 तो नहीं होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जब 5 साल में 100% ही आना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम हुआ। आदित्य कहता है सर व्हाट विल बी सीआई? माय डियर, आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर यू व्हाट इज द सीआई, प्लीज वेट फॉर फ्यू मोर सेकंड्स। Kinshuka says, can you please explain the basic of the compound interest again? Yeah, Kinshuka, compound interest is similar to the simple interest. The only difference here is not only you are getting interest over the principal amount, you are also earning interest over the interest as well. तो पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। That is the basic concept for the compound interest. हर्षवर्धन ने कहा है, please tell how to calculate CI in the same problem. My dear, as I said, I am just going to take that one. As the problems have been solved, I'm going to take what will be the interest. So the compound interest, as I said, should be 100/5 से कम होना चाहिए. So it will be less than 20%. So what I need to do is I'll opt for an answer which is either ending with 0 or ending with 5. ऐसी वैल्यू लो जो 20 से कम है. I'll take 15%. आपको क्यों ऐसे क्यों लेते हैं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 2 साल में अगर मैं 15% के हिसाब से रेट लगाऊं तो 15 + 15 + 15 इंटू 15/100 होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। ध्यान से सुनिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में 15% + 15% 2 साल में मिला है, परंतु पहले साल के 15% पे आपको 15% और मिला है। That gives you 32.25% because 15 + 15 30 होता है, ये 2.25 होता है। इतना तो आ गया होगा 15 का स्क्वायर निकालना। So 32.25 is what you are going to get in 2 years. What about the value in 4 years? 4 years में आपको 32.25 + 32.25 तो मिलेगा, प्लस 32.25 का 32.25 के ऊपर और मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 0.25 कहां उड़ा दिया सर, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, क्योंकि 0.25 मल्टीप्लाई करोगे फिर 100 से डिवाइड करोगे तो आई कैन इग्नोर दीज वैल्यूज। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 64.5। तो यहां से हो गया 32 का स्क्वायर होता है 1024 डिवाइडेड बाय 100 इज 10.4। दिस इज 17। 74 की जगह मैं इसे 75% लिख लेता हूं। 64 + 10 होता है 74, 0.50 + 0.24 होता है 0.75,
प्लस हमने ये 0.25 जो छोड़ा था उसकी जगह मैं इसे मान लेता हूँ 75% होगा। 5th ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 5th ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 75 तो मिलेगा, प्लस 15 और होगा, प्लस 75 इंटू 15/100 होगा, और आई विल से दिस कम्स आउट टू बी 90%, प्लस this is 3/4. 45/4 is coming out to be 11.25, जो 101.25 आता है। इसका मतलब जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 15% के रेट के हिसाब से मुझे 101.25% इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट 14.9 के आसपास आएगा। हाउ मच इट विल कम? इट विल कम आउट टू बी 14.9% के आसपास इंटरेस्ट। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट मी, ओके, Charlene is saying your voice is not clear. Can you repeat it? Yes, dear, I will. जितने लोगों को ये समझ में आया है वो yes लिख के भेजिए। नहीं आया तो प्लीज राइट अ सिंपल नो, I'll explain again दो। ओके, ओके, अनवेश, दीक्षा, गौरी, सिद्धि सिंह नो, आंचल सिंह नो, अतिया आपने शायद सुना नहीं था। हर्षवर्धन, आई विल एक्सप्लेन दैट माय डियर। आर्या नो, दीप्ति नो, Raghavi, I will take simple example, don't worry. Okay. Okay. So I'm explaining this again. Listen to this. Few of you couldn't hear me, so Vidushi is saying, sir, we took the rate of interest of 4 years after 2 years, so we calculated with 32. समझ में नहीं। हाँ जी, आप इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। See here, let's again move to the successive percentage change. सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कोई वैल्यू लगातार बढ़ रही है। यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एक ही है, दैट इज 20%। व्हेन आई से कंपाउंड इंटरेस्ट इज 20%, when I say compound interest is 20%, it is the interest that you are getting the principal as well as interest over interest. So 2 साल का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा 20 + 20 + 20 इंटू 20/100, क्योंकि आपको 20% पहले साल पे मिला है, दूसरे साल में भी 20% मिला, लेकिन 20 पे भी 20 बढ़ गया है। ये ऐसा ही है कि किसी का अप्रेजल हर साल 20% होता है, तो वो 2 साल बाद कितना सैलरी लेगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कम्स आउट टू बी 44%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब मैंने कहा मुझे 3 साल का चाहिए, मुझे 3 साल ही नौकरी करनी है। 2 साल में मुझे 44% मिला है, 1 साल में मुझे 20% मिलेगा, लेकिन मुझे जो बढ़ा हुआ 40% है उस पर भी 20% और मिलेगा। That comes out to be 64 plus 8.8. That is coming out to be 72.8%. So my interest will come out to be 7. So the interest is coming out to be 72.8%. मैंने कहा नहीं यार, मुझे अब 4 साल का इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल में 72.8 था, 1 साल में 20 था, प्लस 72.8 इंटू 20/100 होगा। हमने इसे ऐड किया, 92.8 ही आ गया, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 8 2 16, 2 2 4 + 1 + 5, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 14.56। सो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 106.36% आएगा 4 साल में। ठीक है, ओके। गौरी सिंह, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। गौरी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चेक योर नेट कनेक्टिविटी। गौरी, टेल मी नाउ, कैन यू हियर मी? Okay, I type a message to her then. Yes. Okay. Jyoti is saying sometimes it is not clear. Okay, I'll try, ma'am. There are a few things which are not in my hand.
इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? एक बार जरा यस लिख के बता दीजिए। साक्षी सेज यस, सिमरन, शाश्वत, ईशी, ज्योति, दीप्ति, देवदत्त, अंतस, कृति, विदुषी, हर्ष, आर्य, आदित्य, आदित्य, वंश, राघवी शर्मा। Okay. So out of 40 people, only 15 of you got it. Kinshuka. जिनको समझ में नहीं आया साहब नो लिख ही लीजिए। काजल त्यागी। सी यू नीड टू बी लिटिल फास्ट यार, तुम्हारे पास सिस्टम है। और हाँ, आपके और मेरे बीच में सिर्फ 1 सेकंड का जहां तक मुझे लगता है डिफरेंस है। अदिति गुप्ता, आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो मैम। मुझे पता नहीं चलेगा अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो। और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज पूछिए। ओके, सो बाय द वे, मेरे ख्याल से सबको पता है कि चैट नीचे ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे तो चैट में आप जा सकते हैं, यू कैन टाइप थिंग्स। ठीक है, ओके। People who couldn't understand it, just the people who understood it, just give me a few more seconds. हमने कहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 20% होता तो मुझे कितना परसेंट पैसा मिलता 1 साल में? आपने कहा सर इसमें भी कोई बताने की बात है, हर साल पहला साल तो सेम ही होता अगर कंपाउंडेड एनुअली है। हमने कहा 2 साल में कितना मिलेगा? हमने कहा पहले साल का 20%, दूसरे साल का 20%, प्लस पहले साल के 20% पे भी आपको 20% मिलेगा क्योंकि ये सक्सेसिव चेंज है। तो अगर मैं 10,000 रुपए मुझे सैलरी मिलती है, 1 साल बाद मेरी सैलरी 12,000 रुपए हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो मुझे 10,000 पे नहीं मिल रहा है। मेरा इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 10,000 पे नहीं हो रहा है, मेरा इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 12,000 पे हो रहा है। तो मुझे 20% मिला, प्लस 20% पहले साल का, दूसरे साल का मिला, प्लस मुझे 20% पे भी 20% मिला, जिसको मैंने 44% लिख लिया। अब मैं जानना चाहता हूं मेरा 4 साल में कितना होगा। तो मैं क्या करता हूं, 2 साल के कॉम्बिनेशन को अगले 2 साल के कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइन कर लेता हूं। तो 2 इयर्स में मुझे 44 मिला है, अगले 2 ईयर में भी मुझे 44 मिलेगा, प्लस 44 इंटू 44 है 100। दिस गिव्स मी 88। 44 का स्क्वायर याद करो, मैंने बताया था बेस सिस्टम से हाफ ऑफ 100 से ये 6 कम होता है। 6 का स्क्वायर इज 36, सेपरेटेड बाय 6, 38 आधा करो 19.36, तो 19.36 आ गया जी। सम करोगे 107.36 आ गया। ठीक है, this will come out to be 100 and this 8 to the 16, this is 2 to the 4 5 and 7 to the 14। ठीक है, सॉरी 107.36 ये भी आएगा। आप या तो हर साल का निकालिए, 2 इयर्स के बाद 3 इयर्स निकालिए, उसके बाद 4 ईयर निकालें तो भी आपका आंसर 107.36 आएगा, या आप 2 इयर्स के 2 कॉम्बिनेशन निकालिए तो भी आपको 107.36 आएगा। तो मेरा प्रूफ भी हो गया है कि आप किसी भी हालत में कॉम्बिनेशन लीजिएगा आपका आंसर डिफरेंट नहीं होगा। इफ नाउ इट इज क्लियर से यस। मिताक्षरा, हरदीप, वंश, ज्योति, सिद्धि, शालीन, पार्थ, रक्षित, अन्वेश, काजल, भानु, हर्षवर्धन, सिमरन, सिमरन श्रीवास्तव, साक्षी, यस। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया प्लीज से नो, टाइप अ नो हियर। देखो यार, 2 ही कैटेगरी में होता है इंसान, या तो यस होता है या नो होता है। ओके, अदिति गुप्ता, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आता है अगर कोई वैल्यू, ये तो आज भी हमने रिपीट कहा था कि कोई ए परसेंट बढ़ रहा है प्लस बी परसेंट बढ़ रहा है तो इफेक्टिव चेंज होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। मैम आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला। राघवी जी, कोई भी सेकंड मेथड नहीं है मैम, ये सेम मेथड है।
जहां पर मैंने आपको 2 इयर्स का कॉम्बिनेशन 44% कहा है, 4 साल, एक 2 साल और एक 2 साल का कॉम्बिनेशन होगा, 2 + 2 ईयर का कॉम्बिनेशन होगा। 2 ईयर में 44 आया, 2 ईयर में 44 आया, 44 इंटू 44/100 किया। यस, यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड आदिति। अच्छा आदिति, चलो ये देखो, आपको 10,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था, आपने 1.2 की पावर 4 करा है, आप इसको निकाल के भी आंसर निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 1.2 का स्क्वायर करेंगे, आप 1.44 करेंगे। अब आप 1.44 का स्क्वायर करेंगे, डोंट यू थिंक इट विल बी आल्सो गोइंग टू कंज्यूम द सेम टाइम? दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग इट। द मोमेंट आई एम सेइंग 1.2 की पावर 12, मैम आप कोशिश कीजिएगा, निकलेगा नहीं है आपसे, और एग्जामिनर पूछने वाला है ऐसे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो फॉर्मूला बुक्स में आपने आज तक पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, उसकी जगह आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। राघवी शर्मा, पहला मेथड और दूसरा मेथड मैंने जानबूझ के 2 अलग अलग मेथड लिए हैं, ये प्रूव करने के लिए, या तो आप हर साल बढ़ते जाएं, या आप 2 साल का आपने निकाल दिया, 4 साल के लिए मैं एक 2 साल का और एक 2 साल का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, या मैं 2 ईयर के बाद 3 ईयर का निकालूं, फिर 4 ईयर का निकालूं। एंड फ्रॉम दिस आई ऑल्सो वांटेड टू प्रूव कि जी आपका आंसर सेम ही आएगा, दोनों में से किसी भी हालत में से जाए। इज इट फाइन नाउ? अगर क्लियर है तो बताइए। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Okay, so the people are saying there's still some problem. Yes, sir, it's fine now. Sir, due to some net connection, I'm not getting your video. Hardeep Kaur, you can watch the recorded session later on. I think that will be feasible. So, जब तक जितना आप समझ पा रही हैं उतना तो समझ पाइएगा, क्योंकि किसी को कोई नहीं पता कि किसका नेट कब तक चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन पिछले 20 मिनट से सोच रहा हूँ आपसे पूछूं। There are two banks, HDFC and SBI. ये सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा देता है, ये कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा देता है। 5 years में मनी डबल्स इन बोथ द केसेस, डबल हियर डबल हियर। आप ये बताइए कि अगर मुझे HDFC से 7 times ऑफ माय प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो कितने साल लगेंगे, टाइम पीरियड बताइए। दूसरा है, अगर मैं SBI से 7 times ऑफ इंटरेस्ट चाहूं, सेवन टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल एज अ इंटरेस्ट चाहूं, तो कितने टाइम लगेगा? आई होप इट इज क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, तो मुझे दोनों के आंसर चाहिए।
I want both the answers together. Okay. She has got some answer 16 years. Part says 30 years. मुझे ना HDFC H डैश करके आंसर बताइए और SBI का अलग से आंसर बताइए. मुझे पता नहीं चल रहा आप किसका आंसर बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों का टाइम पीरियड पूछा है. एक में 7 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, मुझे अमाउंट चाहिए. दूसरा कह रहा है कि 7 टाइम्स जो होना चाहिए मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, कितने समय में होगा. ओके, सो देवदत्त गॉट सम आंसर. ज्योति, यू आल्सो गॉट सम आंसर. ईशी हैज गॉट सम आंसर. मिताक्षरा का भी आंसर आया है. रक्षित का आंसर है. उर्वी मित्तल का आंसर है. मैडम यू नीड टू चेक. उर्वी जी 3.5 साल में आपका हो गया. जब मैम 5 साल में डबल हो रहा है तो 7 टाइम्स 7 गुना मुझे पैसा कम मिलेगा. सॉरी, थोड़ा सोचिए. साक्षी, यू आर सेइंग HDFC 60 इयर्स लेगा. वंश कह रहा है 30 इयर्स लेगा HDFC. सिमरन कह रही है 35 इयर्स लेगा HDFC. राघवी से 17.5 इयर्स लेगा HDFC. पार्थ इज सेइंग 35 इयर्स. HDFC कह रहे होंगे शायद पार्थ. हाँ. Harsh is saying Harshvardhan 30 years HDFC. Shalin is saying 16 and 13. Parth is saying SBI 30 years. Sir, can you please? मैम सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा हूं मैं कि कितने साल में आपको इंटरेस्ट जो होगा वो 7 गुना मिलेगा अपना प्रिंसिपल का. किंशुका इज सेइंग 17 इयर्स में HDFC डबल करेगा पैसा. सॉरी, 7 टाइम्स ऑफ अमाउंट मिलेगा. दीप्ति इज सेइंग HDFC 35 ईयर. दीक्षा 16 इयर्स. काजल HDFC के 60 साल और SBI के 35 साल. मिताक्षरा कह रही है मेरा आंसर 15 मंथ्स. क्या हुआ मैम, 15 मंथ्स कैसे? 5 साल में तो पैसा डबल हो रहा है. आपको तो 7 गुना चाहिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मंथ में कैसे आ गया? अंशुमन है सेइंग HDFC को 35 इयर्स लगेंगे. उर्वी कह रही है 35 इयर्स SBI को लगेंगे. अंशुमन और उर्वी दोनों क्रॉस चेक कीजिए. सूर्यांश 30 इयर्स HDFC. नित्या HDFC को 17.5 इयर्स लगेगा. मिताक्षरा, ओके मिताक्षरा, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम मैम. आई थॉट मे बी पता नहीं क्या. सॉरी, बोथ आर ओके. इट इज एब्सोल्युटली फाइन मिताक्षरा. Nasha is saying SBI will take 15 years while HDFC will take 17.5 years. ज्योति saying कोई फर्क नहीं पड़ता है, SBI हो वो हो, दोनों को बराबर टाइम लगेगा. कैसे लगेगा बराबर टाइम मैम? एक सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, एक आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट देता है, दूसरा आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका तो ज्यादा ही होगा. नशा कह रही है SBI 15, HDFC 17.5. नहीं ज्योति, आपका आंसर सही नहीं है. ओके, नाउ इट्स टाइम दैट आई शुड आंसर इट. अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा. No more further answer is required. Please see here. HDFC का पहले केस लेता हूं. HDFC कहता है आप 100 रुपए लगाओ, 5 साल बाद आओ, सिंपल इंटरेस्ट में आपको 200 रुपए मिलेंगे. सिंपल इंटरेस्ट होता है जहां पर आपको प्रिंसिपल पे अमाउंट मिलता है. अगले 5 साल में कोई मुझे बताएगा कि 200 का 400 होगा या 300 होगा? शायद वो 300 रुपए ही होगा. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पे मिलता है. तो भैया अगर 5 साल में 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आया है मेरे लालों, तो अगले 5 साल में भी तो सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए ही आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है. 200 रुपए पे थोड़ी ना ब्याज लोगे. इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट. अगले 5 साल में आपको 300 का 400 होगा. अगले 5 साल में 400 का 500 होगा. अगले 5 साल में 600 होगा. अगले 5 साल में 700 होगा. कितने 5 साल के पीरियड रहे? 1 2 3 4 5 6. तो 30 इयर्स लगे जी आपको.
कुछ लोगों ने 35 ईयर आंसर दिया है। मैं बताता हूं आपने क्या गलती करी है। मैंने कहा है अमाउंट, यहां पर आपने ब्याज निकाला 700 रुपए। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का 7 टाइम्स ऑफ द मनी यू आर गोइंग टू गेट, बार बार रिपीट करते हुए भी आपने 35 ईयर आंसर दिया। मैं कह रहा हूं देखो यार, हर 5 साल में इन एवरी 5 ईयर्स यू अर्न 100 रुपीज, तो 600 रुपए कमाने में आपको 30 ईयर्स लगेंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 700 कहा था। अरे भैया 100 रुपए मेरा भी तो है, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, टिप में थोड़ी ना दे दूंगा इसे। तो जो मनी मुझे मिलेगा 30 ईयर्स में वो 700 मिलेगा। इफ इट इज क्लियर से यस। शाश्वत, पार्थ, सिमरन, ईशी नो, ईशी क्यों नो, मिताक्षरा यस, सिद्धि यस, रक्षित यस, किंशुका यस, वंश यस, ज्योति यस, शालीन, अंतस, ऋषिता गौर, काजल, त्यागी, गलती समझ आ गई, बहुत बढ़िया देवदत्त, मैं यही चाहता था गलती समझ में आ जाए। दीप्ति, भानु, कृति, एक बार मैं अपने शब्द रिपीट करना चाहता हूं। अत्य समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। देखो भाई, हम लोगों के बीच में इंटरफेस एक ही है, वो है ये। या तो आपने लॉगिन करके उसको किसी कबर्ड में रख लिया मोबाइल, अगर आपके सामने है, और आप तभी तक इंटरेस्टेड हो सकते हैं जब आप मुझे सुन रहे हो। और जब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं, उसके लिए आपको यस नो कुछ लिख के मुझे भेजना पड़ेगा। अगर मेरे पास 41 स्टूडेंट्स है और वो 41 स्टूडेंट्स में से सिर्फ मेरे पास 15-20 आता है, तो उसका मतलब भैया कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है हमारी तरफ से, आपको आवाज नहीं आ रही है। आत्य कुमार इज सेइंग नो। ओके फाइन, नाउ डोंट सेंड मी एनी मैसेज, सी हियर। आत्य जी और ईशी, 100 रुपीज मैंने बैंक में डाले, 5 साल में मेरा पैसा डबल होके 200 रुपए हो गया। ये मेरा अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है। तो 5 साल में मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 100 रुपए मिला। अगले 5 साल में भी 100 रुपए मिलेगा तो 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है। अगले 5 साल में भी आपको 100 रुपए मिलेगा। तो हर 5 साल में आपको 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो 600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कमाने के लिए आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 ईयर्स में आपको 600 सिंपल इंटरेस्ट मिला। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है इंटरेस्ट, एक है अमाउंट। अमाउंट में इंटरेस्ट के साथ जो आपने पैसा रखा डाला है, आपके 100 रुपए जो आए हैं वो भी जुड़ के आपको वापस मिलते हैं। तो ये जो 700 रुपीज है ये अमाउंट है, दिस इज नॉट इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स, अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स की बात करूं तो वो तो 600 रुपए आएगा। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। जिनको समझ में नहीं आया था पहले, जिन्होंने डाउट कहा था, आदित्य एंड ईशी, टेल मी हैव यू गॉट इट नाउ? ओके, साक्षी सिंह, शी गेट्स इट नाउ। ओके गुड आंचल। ईशी जी कोई डाउट है तो प्लीज लिख के भेजिए। मानवी, yes sir, got it. Okay, I don't know, maybe she logged out. Okay, let's move to the next one. अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं। एसबीआई जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करता है। आपने 100 रुपीज डाले, प्रिंसिपल 100 रुपीज थे, 5 ईयर्स के बाद पैसा आपका 200 रुपए हो गया। अगले 5 साल में, अब सुनिएगा मेरी बात, अब जो आपको ब्याज मिलेगा वो इस 200 पे मिलेगा। तो 5 साल में पैसा डबल होता है, तो अगले 5 साल में भी डबल हो जाएगा जी, 400 होगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स इट इज गोइंग टू गिव मी 400। अगले 5 साल में ये क्या देगा बताओ? 400 का 800 देगा। तो हमने कहा 100 रुपए मेरा था, 800 रुपए अमाउंट हुआ, यहां ये ब्याज नहीं है। इस अमाउंट में, 800 रुपए के अमाउंट में 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल था और 700 रुपए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो पूछा गया है कि कितने साल में आपको 7 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो I'll say 5, 5, 5. In 15 years, you will get
amount which is 8 times of principal, and you will get compound interest which is 7 times of principal amount. तो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो ऐसे ही गोली दी जाती है. ठीक है, इसी नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन. कोई फायदा नहीं है फिर इतना अलग से कनेक्ट कीजिएगा मुझे. आई होप इट इज क्लियर. जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया ये सबको समझ में आया. तो आपका आंसर कितना होगा इन 15 ईयर्स में आपको इतना मिलेगा. इफ इट इज क्लियर प्लीज से यस. साक्षी, काजल, देवाशी, आंचल, आर्चिक, देवदत्त. Okay, almost everyone. Parth, Deepti, Suryansh, Bhanu, Harshvardhan. Okay, Vidushi saying it was not. Vidushi, आपका नेट का कुछ प्रॉब्लम है. शाश्वत, शालीन, दीक्षा, आर्या, गैलेक्सी, J5 प्राइम. गैलेक्सी साहब अपना नाम लिख लेते थोड़ा अच्छा लगता साहब. This is specifically for Galaxy J5 Prime and Vidushi. आपने 100 रुपए बैंक में डाले. बैंक कहता है कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है. आफ्टर 5 years 100 विल बिकम 200. अगर कोई आदमी 100 रुपए डालता है, उसका 5 साल में अगर 200 मिलता है. अगर मैं 200 डालता तो कितना मिलता? 400 मिलता, 400 रुपीज मिलता. सो हमने भी यहां पर यही काम किया. हमने कहा 5 years में 100 बिकम 200. अगले 5 साल में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अमाउंट पे मिलता है साहब, तो वो भी डबल हो जाएगा. नेक्स्ट 5 years में वो दोबारा डबल हो जाएगा. 400 का 800 हो जाएगा. ज्योति जी, डू नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली. मैडम अभी भी आपको बता रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है. आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है. अगर 200 रुपए है तो 100 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन 100 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा मैम वो आपके इस 200 रुपए में. एग्जांपल देता हूं. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, 1 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट आया. मान लो आपने 100 रुपए जमा किया था, 110 रुपए आए. अब जब आपकी पासबुक में पैसा नजर आता है तो 110 रुपए नजर आता है. अगले साल जब ब्याज लगेगा तो वो 100 रुपए पे नहीं लगेगा मैम, वो 110 पे लगेगा. 10%, 121 रुपीज आएगा. यही बताना चाहता हूं कि once it becomes amount you get interest over the amount, you are not getting interest over the principal amount. ठीक है ज्योति जी, आपको समझ में आया? तो ये सक्सेसिव का मतलब ये हुआ कि आप 1 लाख रुपए डालो, 5 साल में 2 लाख हो जाएगा. तो मैंने कहा मैंने 100 रुपए डाले तो 5 साल में 200 हो गए. अब अगले 5 साल में मैम आप 100 के 300 नहीं करोगे मैम, आप 200 का सीधा डबल करोगे, आपको 400 हो जाएगा. अगले 5 साल में 400 का भी डबल करोगे, 800 हो जाएगा. So Galaxy J5 Prime, have you understood it? अच्छा भाई साहब चले ही गए. Okay, so let's move to the next one then. I hope it is clear. इसको यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. Any doubt? I'm waiting so that now I can ask some more questions. विदुषी कह रही है जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या मैम? 15 years में 100 रुपीज के मुझे 800 रुपए मिल रहे हैं. 800 is what I'm getting from 100 rupees. Now this 800 is the total money that I'm getting from the bank. Out of this 800, 100 was my money, my investment. So in the question I asked you, how many years do I earn compound interest, which is 7 times of my principal amount. तो जो 700 रुपीज है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का 7 टाइम्स है, इसलिए मैंने 7 टाइम्स आपको निकाला. तो 800 रुपए आपको मिला है, लेकिन 100 रुपए आपका है, आप समझिए उसे. तो आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो 700 रुपीज ही मिला है, विच इज 7 टाइम्स ऑफ योर 100 रुपीज. तो इसीलिए जो आंसर है वो 15 ईयर्स ही होगा. मैंने अमाउंट नहीं कहा था, मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट. I hope Vidushi and Shaleen, is it clear?
Okay, Vidushi is saying it is fine. शालीन या हाँ ना यार, दो में से एक वर्ड टाइप करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम समय लगता है. Okay, fine. Okay, next. He's also not having any doubt now. Now the question that I'm asking, listen to this very, very carefully. The difference between compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 40% is rupees 1680. Find the principal amount. दो साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दो अलग अलग बैंक है, दोनों 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. एक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट देता है. उनके बीच का डिफरेंस 1680 है. तो आप ये बताइए जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है, जो पैसा बैंक में लगाया गया है, जो पैसा बैंक में रखा गया है, वो कितना है? कम ऑन. Oh, I'm so sorry. The audio was off. नित्या आपका आंसर सही नहीं है. चेक करो से. हर्षवर्धन नो. राघवी I sorry, I told you your answer is also not correct. Suryan's answer is correct. Sakshi, you need to check zeros.
शालीन आप भी 0 देखो, आपने 0 में कहीं कुछ गड़बड़ किया है। विदुषी आंसर सही नहीं है बेटा। किंशुका सही, देवदत्त एकदम सही, साक्षी योर आंसर इज करेक्ट। विदुषी जी अभी भी उत्तर सही नहीं है। मिताक्षरा नो। ज्योति प्लीज सेंड योर आंसर अगेन, आई मे हैव मिस्ड इट। हाँ जी बिल्कुल, दीक्षा जी आंसर सही है आपका, देवदत्त का आंसर सही है। शालीन एक 0 के बारे में सोचो। ज्योति आंसर इज करेक्ट। रक्षित नो माय डियर, 30 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, सोचो ना यार थोड़ा। आंचल बरनवाल, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने कहा है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 40% इज 1680 रुपए। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलना भाई। पूर्वी मित्तल नो। शालीन नाउ इट इज बेटर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिस्टेक यू हैव डन। राघवी शर्मा नहीं जी, अभी भी उत्तर सही नहीं है। पार्थ नहीं मेरे लाल। आंचल जी गिव मी द करेक्ट आंसर। सिमरन नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने कैलकुलेशन में। पूर्वी चेक योर आंसर अगेन। पार्थ अभी भी ठीक नहीं है यार। ज्योति योर आंसर इज करेक्ट। मिताक्षरा 400 रुपए में 40% ब्याज 160 रुपए होता है बेटा, और डिफरेंस ही 1680 का आ रहा है, तो इतना कम तो नहीं हो सकता। ओके हियर इज द आंसर फॉर यू नाउ। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा बस इसे ध्यान से देखें। आर्चिक कहां गया? आर्चिक का एक भी आंसर नहीं आया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बिकम 40 + 40 which is coming out to be 80%. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विल कम आउट टू बी, कीर्ति आंसर सही नहीं है, गौरी आपका भी सही नहीं है। 40 + 40 प्लस यू विल गेट 40% ओवर 40%, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज 96%। 80 + 16 इज 96%। आप लोगों ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। मैंने कहा था 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं कहूंगा मुझे 40% ऑफ 40% चाहिए, मतलब 40% ऑफ 40% चाहिए मुझे, which is coming out to be 16%. That 16% is equal to rupees 1680. तो 1% will become 16 1 जा 16, 0 डिवाइड नहीं जा रहा, 16 5 जा 80 हो गया जी 105। तो 100% ऑफ दैट विल कम आउट टू बी कितना? 10500। तो दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने कहा था हर नंबर अपना संपूर्ण होता है। गौरी एंड कीर्ति आप सोचो, रक्षित 105 आपने 1% निकाला था, कीर्ति 4200 कैसे आया, गौरी 42,000 कैसे आया? गौरी आपको समझ में आए? रक्षित आपको समझ में आया? रिशिता मैम आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। मैम 40% प्रति वर्ष, एवरी ईयर यू गेट 40% ऑफ इंटरेस्ट। तो मैम सिंपल इंटरेस्ट मैंने 2 ही चीज समझाई है इस पूरे क्वेश्चन में, कि ये प्रिंसिपल पे मिलता है बस। तो 40 + 40 is 80% of the principal amount what you are going to get through the SI. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आपको 40% + 40% आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे आया, प्लस आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। रक्षित जी समझिए इसे, आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है यार, 40% मिलता है, प्लस 40% मिला के जोड़ोगे तो 80% ही तो होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट 40 + 40 होता है, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाया कल मैंने आपको, तो आपको 96% मिल गया।
दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों के बीच में 16% का गैप है, 16% का गैप है, जो 1680 रुपए के बराबर है। तो 1% कितना होगा? आप डिवाइड करोगे 16 से, 16 वन जा 16, 16 फाइव जा 80, 105। तो 100% कितना आया? 10,500। यस मिताक्षरा, दिस इज व्हाट इज टू बी डन। 80% को 96% से घटाना था, तो 16% बचता है मैम, विच इज इक्वल टू 1650। रक्षित, आपको समझ में आए? रिशिता, यू गॉट इट? गुड। आ गया, आई होप रक्षित इज सेइंग गॉट इट नाउ। ओके, क्या आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है? और ठीक है, मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन और आपसे। द रेशियो ऑफ SI to CI for 2 years is 24:29. Find the rate of interest. अनुपात, रेशियो कहते हैं इसको। SI और CI का 2 साल का जो रेशियो है वो 24:29 है। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? विदुषी has got some answer. नहीं विदुषी मैम, सही नहीं है। वेरी गुड शालीन, मच बेटर। आर्चिक, क्या आप हैं? अंशुमन से कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। एक गैलेक्सी J5 प्राइम है, वो भाई साहब भी कुछ नहीं बोल रहे, या बहन जी जो भी हैं। मिताक्षरा बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? ये 24:29 आपने रेशियो दे रखा। आप सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एक से आपको 24 मिलता है, दूसरे से आपको 29 मिलता है। साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट। नित्या, 25 इज नॉट करेक्ट मैम। देवदत्त, बढ़िया, वेरी नाइस। नहीं सूर्यांश, उर्वी, आपका आंसर भी सही नहीं है। आई हैव गॉट 10 more minutes. थोड़ा जरा जल्दी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, because then there is a class for MBA students at 1. Mitaksha is 20. No. ठीक है अंशुमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आया तो कोई। रक्षित, नहीं बेटा। सिमरन, 50 will not be the answer. रिशिता गौर, 5% कैसे हो सकता है यार? कोई बात नहीं आदित्य कुमार, मैंने भी क्वेश्चन ट्वीक करके पूछा हुआ है।
किंशुका अग्रवाल, गुड, बहुत बढ़िया, काफी टाइम बाद। उर्वी मित्तल नहीं जी, 54 नहीं होगा। सिमरन नहीं, 20 नहीं होगा। ज्योति आ, थोड़ा सा गलत लिखा आपने, अगर इसको और रिफाइन करेंगी तो आपका आंसर सही है। सोचो आपने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। मानवी वर्मा नहीं, आंसर 14 नहीं है। कोई बात नहीं पार्थ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। मैंने जानबूझ के कुछ मॉडिफिकेशन करके पूछा है, क्योंकि अगर जो तुम्हें आता है वो मैं बार बार पूछूंगा कोई फायदा नहीं है, कुछ नया तो होना ही चाहिए। कोई बात नहीं उर्वी, आई एम गोइंग टू कवर इट अगेन। मैंने खुद जानबूझ के ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा है, सो दैट ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट। इधर देखिएगा जरा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो 24:29 है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, तो पहले साल का 12 रुपए होगा, दूसरे साल का 12 रुपए होगा। डॉलर लेना तो डॉलर ले लो, यूरो लेना यूरो ले लो, पाकिस्तानी रुपए लेना है पाकिस्तानी रुपए ले लो। आप सब बच्चों को पता है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का नीचे वाले पार्ट का 12 रुपए लिखा। अगले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 12 है, बट आई एम अर्निंग 5 रुपीज मोर। आई एम गेटिंग 5 रुपीज मोर, 5 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं पिछले 12 रुपए पे। 1/12 होता है 8.33। मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 3 15, 5 3 15, 16 हो गया, 8 5 41.65 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप ज्योति आपको समझ में आ गया होगा। आप 5 रुपए फालतू कमा रही है, 24 पे नहीं। 24 2 साल का है, 1 साल का तो 12 रुपए है। तो ऐसे करा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है, इसलिए मैंने इसे 12+12 लिखा। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। आई हैव रिटन 12 हियर। सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट 12 होता है, परंतु आपको 5 रुपए यहां ज्यादा मिल रहा है। ये तभी होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाता है। तो मैंने ये जो 5 रुपए कमाए हैं, ये पिछले साल के इंटरेस्ट के ऊपर कमाए हैं। मैंने 12 रुपए पे 5 रुपए कमाए। मैडम विदुषी जी, अभी भी आप समझ नहीं रही है मैम। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अलग हो सकता है? अरे भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स होता है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो पहले साल में 10% होगा, दूसरे साल में 10% होगा सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको दूसरे साल पे 10 पे 10 और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो रेट इज कांस्टेंट, द रेशियो। आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी रेट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 24:29 आता है। हमने कहा 24 अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल 12-12 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 29 है तो पहले साल का 12, दूसरे साल का 12, प्लस यू अर्न 5 रुपी एक्स्ट्रा। तो यू आर अर्निंग 5/12, 5/12। दैट विल गिव यू द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट से यस। साक्षी, अंशुमन, देवाशी, शालीन, आदित्य, ऋषिता, राघवी, मानवी, आंचल, देवदत्त, गौरी त्यागी, सिद्धि, सिमरन, कृति, पार्थ। पार्थ को समझ में नहीं आया। रक्षित, हर्ष, नित्या, ज्योति, अंतस, अगेन एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। काजल, नैशा, आर्या, वेरी नाइस। दीप्ति इंद्रवाल को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं दीप्ति। और दीक्षा, यू गॉट इट। ओके, हमने कहा the ratio of simple interest is to compound interest for 2 years. So simple interest and compound interest, the ratio of these two is given as a 24:29. 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं $24 मान लेता हूं तो हर साल का 12-12 होगा, क्योंकि अगर ये 3 इयर्स का 36 दिया होता तो भी हर साल का 12 होता, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो हर ईयर सेम होता है। आपको पता है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है
तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। दूसरे साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट पे तो आपको अभी भी 12 रुपए मिलेंगे, परंतु ये 5 रुपए और दे रहा है। कहां से आया ये 5 रुपए, कहां से ये आपने ये $5 कमाए हैं? ये पिछले साल के इंटरेस्ट पे आपको मिले हैं। तो आपने जो 5 रुपए कमाए हैं वो 12 रुपए पे कमाए हैं, $5 जो कमाए आपने $12 पे कमाए। इंटरेस्ट के लिए इंटू 100 कीजिए। मैंने आपको कल पढ़ाया था 1/12 होता है 8.33%। तो अगर कोई 5/12 बोले तो आप 5 टाइम्स कर देंगे। So that is 41.65%. I hope now it is clear. दीप्ति जी आपको समझ में आया? अंतस, पार्थ को भी शायद समझ में नहीं आया था। इन तीनों को बताओ भैया क्या स्टेटस है अभी। अंतस गॉट इट, दीप्ति इंद्रवाल गॉट इट, पार्थ यू आल्सो गॉट इट, थैंक यू। सो this is all about simple interest and compound interest. I'm going to ask you one more question now. Rate of interest is 20%. The difference नहीं निकालते। The principal amount is given as a 2 lakh rupees. Find out the compound interest after 8 years. 8 years में कितना compound interest होगा? So come on, find out the answer now. अजय कुमार, अमाउंट बताइए और 32% कैसे होगा भाई? एक साल में 20% होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी लगाएगा यार। 8 साल में तो 160% तो वैसे ही होता है। अगर एक साल में 20% मिलेगा तो 8 ईयर्स में 60% तो भाई 160% तो वैसे ही मिल गया। क्या कर रहे हैं आप? गौरी त्यागी सिंह, गौरी त्यागी जी, जो मैंने अभी इनको बताया सेम आपके लिए भी लगता है। 1,44,000 कैसे हो सकता है? 160% तो वैसे ही मिल जाता है। 160% ऑफ 2 लाख जो होता है वो 3,20,000 होता है। तो एनीवन हु इज गेटिंग लेस देन 3,20,000 इज तो ऑल एब्सर्ड। किंशुका जी, मेरे ख्याल से परसेंटेज में निकाला होगा आपने। 160% से तो कम वैसे ही नहीं हो सकता मैम। पार्थ 7,04,000, Simran Srivastava 3,28,000. Antarsdeep has got some answer, 176%. I'm not very convinced. Antas, sorry. Sakshi is saying 6,59,966 maybe. Rakshit is saying that it will come out to be 4,29,000. Mitakshra is 4,25,920. Jyoti is 2,25,000. 225.14% होगा शायद ज्योति आपका आंसर। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे पे कहा था लेकिन ये भी चलेगा। रक्षित कहता है 4,29,440। तो रक्षित एंड, अच्छा रक्षित ने दोनों आंसर दिए थे। ओके।
Suryan Sishodia, 3,52,000. Anvesha is saying 6,59,960. The rate of interest is 200 in Prakshit. Maybe. Okay, Vansh Tyagi, after a long interval, is saying 7,11,040. Okay, 2 years का compound interest क्या होगा? 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100. I'm sure all of you agree with this. That gives me 44%. 4 साल में कितना होगा? 44 plus 44 plus 44 into 44 by 100. That is 88. 19.36, that is 107.36. 8 years में कितना होगा? मैंने इतना इजी सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया था. 107.36 plus 107.36 plus 107 into 107 by 100. ये सारा करूं तो 214.72 तो ये आ गया. 7 का स्क्वायर 14 होता है, 114.49. सो 328, 330% के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली. 330% ऑफ 2 लाख होता है 6,60,000. उससे थोड़ा सा कम होगा. तो जो भी आंसर 6,59,000, 58,000 के आसपास आया है, दैट इज करेक्ट. हाँ बिल्कुल सही है. 329 विदुषी आपका आंसर सही है. तो वंश आपको शायद समझ में आया हो क्या? आपने अमाउंट तो नहीं निकाला कहीं? नहीं, अमाउंट भी नहीं लग रहा है तो मुझे. रक्षित 214.72 आपका 4 साल का. आपने बस ये कंबाइन कर दिया था. यू फॉरगेट टू मल्टीप्लाई 107 विद 107. हाँ अंचल बरनवाल, अगर आपने अमाउंट निकाला था तो इट इज करेक्ट. 430% के आसपास आएगा. Jyoti saying I added 214 with 11.14 instead. Yes. तो ये गलतियां तो नहीं करनी मैम. ओके. मिताक्षरा आपका आंसर क्या था? आई नीड टू चेक. 425.92. नहीं मैम, ये नहीं होगा. 330 होगा. तो या तो 330% आपने वो निकाला होगा तो उसका 6,60,000 के करीब आता है. विदुषी आपने 6 ईयर क्यों निकाला बेटा? 4 साल के 2 कॉम्बिनेशन लगाओ, 8 साल आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. वाई टू वेस्ट टाइम? पार्थ, हाँ ठीक है. 6,58,000 इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर. Fine. So I think it is sufficient for today. I thought of covering some more topics, but I think SICI is itself a lengthy topic. I hope you like these sessions. Your feedback is most welcome. We will try to change. Anyone having any doubt, you can always connect through the group. Just post your doubt there. I'll try to answer that. Thank you. Thank you. Thank you, Videshi. कीर्ति, मैंने कहा है कि शायद आपको समझ में आया होगा ये सारा. किसी को कोई डाउट होगा तो दे कैन. हाँ कीर्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना डाउट डाल सकते हैं. वी विल ट्राई टू अरेंज दिस डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. Thank you all. Yes, Vidushi, I will send you the link. You're just going to get it. Thank you so much.